کی باتیں ان سب کے پاس ہیں، پریس کانفرنس ہیں. اب طوفان کے حوالے سے بات آنا شروع ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی سیاست جو ہے وہ شروع ہو گئی. غرض یہ کہ سیاست کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے اوپر سیاست جو ہے وہ نہ کی جائے. یہ سوال اب پوچھا جائے گا کہ خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا طوفان ہے جو ملک کی طرف آ رہا ہے اس کے لیے کیا پیش کی اقدامات کیے گئے ہیں، تو اس کا جواب شاید ابھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کسی بھی آپ شخص سے پوچھ لیں. پاکستان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی سے بھی جا کر آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ جی ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور کسی دوسرے شخص کو جو ہے اس کے لیے انتظامات کرنے ہوں گے. تو جناب دیکھتے جائیے اب کیا صورتحال رہتی ہے. معاملہ دعاؤں کے اوپر ہے تو دعائیں کی جا رہی ہیں اور کر سکتے ہیں. اور باقی معاملہ جو جیسا ہم ہر معاملہ خدا تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ معاملہ بھی خدا تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا. اس کے علاوہ کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے معاملات سامنے آئے ہیں. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. فلور آف دا ہاؤس ایک خاتون رکن جس طرح کی انہوں نے کل اسٹیٹمنٹ دی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے، کوئی منطقی جواز نہیں. اسرائیل کے حوالے سے جو بیان انہوں نے دیا ہے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے، پورا پروگرام اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی حکومت میں موجود لوگ ہیں یہ کم و بیش اسی قسم کی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. نہ کسی کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ کوئی منطقی جواز ہے، نہ علم ہے کسی بات کا، نہ معاملہ فہم لوگ ہیں. اور اس کے بعد ٹی وی کے اوپر آ کر جس طرح کے بیانات دیتے ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ بھیجا گیا ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور جن معاملات موضوعات کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، جس کے بارے میں علم نہ ہو، اس کے اوپر اتنے. خدا خیر کرے بس اس ملک پہ اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جی نا امیدی کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر امید کہیں سے اگر نظر نہیں آئے گی تو پھر کیا کیا جائے. اچھا جی، یہ سارے معاملات ہیں، اس کے اوپر آج فرداً گفتگو کا موقع ملے گا اور کوشش کریں گے ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح کی اس وقت صورتحال ہے کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ان تمام معاملات پر آج گفتگو کریں گے. بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں شریک ہوتے رہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں معاشی معاملات کے حوالے سے، سیاسی معاملات کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر ان سے گفتگو ہوتی ہے ہلکے پھلکے انداز میں. کوشش کریں گے کہ گفتگو زیادہ تلخ نہ ہو، ورنہ ہمارے پاس تو شاید کرنے کے لیے کوئی اچھی بات آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بالکل سامنے ہے. میں بات کر رہا ہوں جناب محمود فاروق افضل صاحب کی، جو کہ تجزیہ کار ہیں اور آج ہمارے ایک دفعہ پھر مہمان ہیں. انہیں میں سب سے پہلے خوش آمدید دیتا ہوں. فاروق بھائی سب سے پہلے تو بہت بہت خوش آمدید، عید مبارک آپ کو. اور جو کچھ ابھی یہاں پہ بات ہوئی آپ یقیناً آپ کے علم میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی کیونکہ اسی ملک کا حصہ ہیں، اسی شہر میں رہتے ہیں، اور جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ ضرور تبصرہ کریں. آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، آپ کھل کر بات کرتے ہیں کہ معاملات سمجھ، میری تو بڑی ناقص سی علم ہے، معاملات کو شاید اتنا زیادہ سمجھتا بھی نہیں ہوں، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کے بیانات ہو رہے ہیں، جس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو سمجھنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. کہ عام پاکستانی کے لیے ایک سادہ لو آدمی ہے، وہ یہ سوال کرتا ہے کہ کس قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے. معاملات کو حل کرنے کی اہلیت تو نہیں ہے، یہ تو ثابت ہو چکا ہے، لیکن کم از کم کوئی بات کرنے سے پہلے آدمی سوچ لے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ اب میں دیکھ رہا تھا وہ جو سائنس کے وزیر ہیں وہ بیٹھ کے کچھ معاشی اعداد و شمار پیش کر رہے تھے، چاول کی آپ کی کنزمپشن کے بارے میں بتا رہے تھے، چینی کے بارے میں بتا رہے تھے. مطلب یہ ہے کیا؟ یہ تو ذرا سمجھائیے، میری تو سمجھ نہیں آتا. آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ کہ کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں؟ فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یاسر بھائی ہمارے ملک کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی سیاسی حکومت بنتی ہے نا جی، تو اس میں ان کے جتنے وزیر ہوتے ہیں نا وہ سارے پھر حکومت کے ترجمان بن جاتے ہیں. ایسا ہی. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں جتنے بھی اچھے ممالک ہیں جو انڈسٹریلائزڈ ہیں، کلچرڈ ہیں، آپ کو امریکہ میں یا یورپ میں جو بھی ملک ہیں، کتنے بڑے بڑے ملک ہیں، ان کا ایک ترجمان ہوتا ہے گورنمنٹ کا. بالکل بالکل ایسا ہی. وہ ساری بات وہی کرے گا، بالکل ایسا ہی. چاہے وہ وزیر اطلاعات ہو یا کوئی بھی ہو. ایسا ہی. لیکن ہمارے ہاں جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک سائنس کے وزیر کو بھی فکر ہے کہ جی اکانومی کیا انڈیکیٹرز ہیں، اس کا کیا ہے. اچھا وہ جو اکنامک منسٹر ہوگا اس کو دوسری چیزوں کی فکر وہ ہوگی، نیب کے کیسز کے حوالے سے بات کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. ہر بندے کو بولنے کا بہت شوق ہے. وہ ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس کر کے یہ کر کے
اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ پوری عوام غلط فہمیوں کا شکار رہتی ہے. ایسا ہی ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کر کے رہی ہے, ہو کیا رہا ہے. ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسا ہی. انفارچونیٹلی یہ سلسلہ ابھی تک بند نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو بند کریں گے تو یہ اپنے لیڈر سے کہیں گے بھائی ہمارا پھر کام کیا ہے بھائی, ہم تو پس منظر پہ رہیں گے یار. ایسا ہی. تو ہمیں پروجیکشن کیسے ملے گی. تو پروجیکشن کے لیے پھر یہ گائے بگاہے الٹے سیدھے بیان, جس کا فیلڈ بھی نہیں ہوتی ہے وہ آ کے اس کا بیان کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اسی طرح اب دیکھیں چاند کے حوالے سے جو ہماری ابھی بات ہو رہی تھی, پہلے بھی بات ہو رہی تھی, اب رات کو اتنا لیٹ, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ آرگنائزیشن نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. مس مینجمنٹ ہے, مس مینجمنٹ, اور اندازہ نہیں کہ کرنا کیا ہے, کس طرح کرنا ہے. اب جو اگر کے پی کی جو بھی رویت لال کمیٹی ایک پرائیویٹلی بنی ہوئی ہے, سو وائی ڈونٹ دے برنگ دیم آن بورڈ کہ جی آپ ہماری جو کمیٹی ہے نیشنل کمیٹی, اس کا حصہ بنے. ٹھیک ہے. اور آپ ایک ہی جگہ جب چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ جگہ چاند نظر آئے, تو اگر آپ اس کو پھیلا دیں اور جہاں سے بھی ایک مستند قسم کی اگر شہادتیں مل جاتی ہیں تو آپ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ. لیکن یہ جو اس دفعہ ہوا ہے, وہ تراویح پڑھ کے آپ آ کے آپ سونے کی تیاری کر رہے ہو اور اس وقت اناؤنس ہوگا جی کل عید ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ گورنمنٹ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کرنا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹوٹلی مس مینجڈ تھا. اور دوسرا یہ دیکھیے کہ جو ہمارے وزراء ہیں ان کو بھی کئی وزیر ایسے ہیں جن کا چاند سے تعلق بھی نہیں ہوگا, آپ ان سے پورے فتوے سن لیں. ایسا ہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. وہ ایسی ایسی باتیں کہ یوں ایسے ہے, فلانا یوں ہے, ایسا یوں ہے. تو وہ چیز یہی ہے کہ ان کو علم نہیں کہ بولنا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا پہلے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے, ہمارے جو بھی لوگ آتے ہیں, کہ بھائی آپ ایک ترجمان رکھیں. اب دیکھیں یو ایس میں جو وائٹ ہاؤس کا ایک ترجمان آتا ہے, جی, سب کو بلاتا ہے اور اپنی پالیسی گورنمنٹ کی بتاتا ہے, بتا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. اچھا, وہ کوئی وزیر بھی نہیں ہوتا, ایسا ہی ہے. آپ نے وہ ایک 17ویں 18ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے. بالکل. اور وہ آ کے سب کو بتاتا ہے کہ جی ہمارا یہ بیان ہے اسرائیل کے بارے میں, ہمارا یہ بیان ہے پاکستان کے بارے میں, ہمارا یہ کورونا کے حوالے سے بیان ہے, ہمارا یہ اس کے حوالے. دیٹس اٹ. ان کے کتنے وزیروں کے بیان آپ پڑھتے ہیں, ہم لوگ پڑھتے ہیں اخبارات, ہم جو انٹرنیشنل اخبار پڑھتے ہیں نام بھی نہیں جانتے کہ کون ہے کیا ہے. ہمارے وزیروں کو تقریباً دنیا کے تمام لوگ جانتے ہوں گے. بالکل ایسا. یار ان کا یہ وزیر ہے, ان کا یہ وزیر ہے, کیونکہ ان کو شوق بہت ہے بولنے کا. بالکل. تو اس کا چاہیے گورنمنٹ کو بھی کہ بھائی آپ ایک جتنے وزراء ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں اور ایک ترجمان رکھیں گورنمنٹ کا, چاہے وہ وزیر اطلاعات ہو یا کوئی بھی ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ آ کے گورنمنٹ کی پالیسی لائن کو ڈیفائن کرے اور بتائے. ٹھیک ہے. یہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا جی, اب یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جن ممالک کی ہم مثال دیتے ہیں نا, ان کو ترقی یافتہ ممالک ہم کہتے ہیں, وہاں پہ طریقہ کار ایسا ہی ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے. لیکن بڑی انفارچونیٹ ہے جس طرح کے لوگ ہیں اور پھر جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے, ان کی علمی قابلیت کیا ہے, معاملات کو کس حد تک سمجھتے ہیں. جیسے خاتون ممبر ایک پارلیمنٹ کے اندر, وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی اس بارے میں بات ہو رہی ہے, کھڑے ہو کے وہ جس طرح کے حوالے دے رہا ہے. ایک تو میں یہ بڑا حیران ہوں کہ مجھے سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کو کہ کس نے ان کو کہا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے یہ حوالے دیں ماضی کے بارے میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جس کو کبھی آپ نے کھول کر پڑھا نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے حوالے دینا شروع کر دیں. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کوئی کبھی اس سلسلے میں کوئی ہو سکے گا, کوئی کم از کم یہ جو جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کم از کم روک ہی دیا جائے, کہ کوئی نوٹس ہی لے لیں کہ جو اسپیکر صاحب ایک بیٹھے ہوتے ہیں ایک خانہ پوری کے لیے, کم از کم بول ہی دیں کہ بی بی جو آپ بات کر رہی ہیں, جو دلائل پیش کر رہی ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے. جب آپ فلور آف دا ہاؤس اتنے بڑے فورم پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہی ہیں تو پیچھے کیا اس کی بنیاد ہے, یہ کہاں سے آپ نے نتیجہ خاص کیا ہے, کس نے آپ کو پڑھایا, یا آپ نے خود سے کیا سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کچھ. اصل میں یہی چیز دیکھیے, یہ وہی چیز دوبارہ کہ چودراہٹ اور کم علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کر دینا کہ جس سے ایک توجہ حاصل کرنا. جی. اور سیکنڈلی پھر یہ کہ دیکھیے یہ کہ اتنا حساس معاملہ ہے بیت المقدس کا, اور سارا جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث ہیں اس کے اوپر, اور پھر ہمارا قبلہ اول ہے, اور پھر یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں اس کا ہمارا تو کعبہ ہے اس کی کیا ضرورت ہے ہم کو, بتائیے. یہ اتنی ایک گری ہوئی بات انہوں نے کی ہے کہ اگر آپ عالم ہیں کہ آپ کون ہیں. بالکل صحیح. آپ کا کیا آپ نے عالمہ کا کورس کیا ہوا, آپ محدث ہیں کیا حدیث کا آپ نے کوئی علم حاصل کیا ہوا, یا آپ اس طرح قرآن کو پورا آپ نے پڑھ کے کیا ہوا ہے. یہ انفیکٹ دیکھیے یہ لوگ وہ لوگ ہیں, یہ اس قسم کے لوگ اس فقہ یا اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جو ہوتے ہیں کمزور, جو کمزور دینی لحاظ سے بھی کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے جذبے کے لحاظ سے بھی کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے جو کچھ ہے وہ دنیا ہے. بالکل ٹھیک. اب ایسے لوگوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یار اگر کچھ جنگ ونگ اس چکر میں ہو گئی, ایسا کچھ ہو گیا, تو جو ہماری دکانداری, جو ہمارے پیسے, جو ہماری یاشیاں, جو ہماری چیزیں ہیں تو ختم ہو جائے گا یار. تو ہم ایسی بات کریں کہ جس سے ان لوگوں کو دور کیا جائے, ایک
शक व शुबा वाली बात कर दें, और लोगों को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये, जिनको जो कम इल्म है, ठीक है ना, वो समझते हैं कि अपने आप को समझते हैं बहुत इल्म है हमारे पास, बहुत इल्म है, लेकिन है कुछ नहीं इल्म उनको, बिल्कुल ठीक है ना। वो मुझसे आपसे सुन के एक को भी हदीस से किताब जरा पढ़ो बैठ के भाई, और 1400 साल से चीज़ चली आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो वो इससे जाहिर होता है कि आपने किस किस्म के लोगों को मेंबर पार्लियामेंट बनाया, बिल्कुल ठीक है, कि जिनका कोई मयार ही नहीं है, मयार ही जिनका नहीं, कोई बिल्कुल इल्म ही ऐसा ही नहीं है, और आपने उनको बना दिया। और फिर स्पीकर साहब का ये काम था जी, कि उस वक्त टोकते टोकते और उसकी तस्हीह करते हाँ, कि आप गलत कह रही हैं, बिल्कुल, दिस इज रॉन्ग, और बल्कि उनको शट अप कॉल देके बिठा देते, उनको बिठाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। लेकिन क्या करें कि जी वो ज़ाहिर है मेंबर है अपनी पार्टी से, पार्लियामेंट है और उनकी पार्टी के हैं, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बोलने का मौका दिया गया उनको, दिस इज रॉन्ग। अल्लाह रहम करेगा वैसे इस कौम पर, क्योंकि इस तरह के अगर लोग मुसल्लत होंगे और इस तरह की अगर बातें होंगी, वो क्लिप में आपको चला के भी दिखा देता, लेकिन क्योंकि हिम्मत नहीं होती इस तरह की बातें जो वो टीवी के ऊपर चलाई जाएँ, लेकिन यकीनन आप तक वो ज़रूर पहुँच जाएंगी जब ये प्रोग्राम आप देखेंगे, क्योंकि अब तो वो इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी है कि वो यकीनन हर शख्स तक जो वो पहुँच चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब फारूक भाई, अब मसला ये है कि जो मसाइल हैं उसकी तरफ आएंगे, हमें अपने मसाइल की तरफ पहले देखना होगा। अभी एक पूरी दुनिया में ग्लोबली एक बहुत बड़ा मसला है इसराइल के हवाले से जो कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया इसके ऊपर एहतजाज करी, और इससे ज़्यादा महज जो है वो कुछ की अभी नहीं जा सकता, हम उसकी बात अभी नहीं करते। हमारे अपने अंदरूनी मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हैं और इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है कि अगर इसको ठीक ना किया गया तो ये उससे भी बड़ी तबाही जो है वो इधर लेकर आ सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अभी ईद भी गुजर गई, अब ये कोरोना वायरस का जो चक्कर है ये ना जाने कब हल हो, किसी को नहीं पता, लेकिन ये जो जिस तरह के फ़ैसले होते रहे हैं, अभी भी ये सूरत हाल है, वफाक का फ़ैसला और है, सूबाई हुकूमतों का फ़ैसला और है, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जो जिसमें सारी मौशी सूरत हाल है, क्योंकि अभी इसके ऊपर बात होना क्योंकि अब ख़त्म हो गई थी माह मुबारक की हवाले से, या उसकी वजह से आप समझ लीजिए कि वो मामला ज़ेर बहस नहीं आए, लेकिन मामला तो वहीं से शुरू होगा ना जहाँ से ख़त्म हुआ। तो मैं आपसे आज एक दफ़ा फिर ये सवाल करूँगा, ये जो बार बार दावे किए जा रहे थे कि जी मौशी हमारी जो इस्तिलाहत हो चुकी हैं, डायरेक्शन सही हो गई है, एक और नया वज़ीर ख़जाना जो है वो इम्पोर्ट कर लिया गया है, मसाइल इससे हल हो जाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, बात आ जाती है अहलियत की जी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट के पास वो अहल लोग नहीं हैं कि जो सिस्टम को चला सकें। तो ये फारूक भाई बात कब समझ में आएगी, ये तो ज़रा बताइए कि 3 साल का अरसा गुजर गया है, और कितना टाइम मज़ीद लगेगा इस चीज़ को रियलाइज़ करने में, जब ये बात 6 महीने पहले रियलाइज़ हो चुकी थी कि इनसे बात नहीं बनेगी, तो ये इतना ज़्यादा क्यों तूल पकड़ गया है? अब इससे ज़्यादा और क्या किया जाएगा, ये फरमाइए। असल में बात वही आ जाती है कि देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है जी, वो ऑनेस्ट हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है, लेकिन क्या उससे मुल्क की हालत बेहतर हो रही है? देखने वाली बात यह है कि आपकी टीम का हिस्सा क्या है। जी, वो इतने स्टबर्न हैं एक्चुअली कि अपनी ज़िद की वजह से, अना की वजह से ऐसे ऐसे चीज़ों पे अटके हुए हैं कि जिसकी वजह से ज़ाहिरी बात है मुल्क को नुकसान हो रहा है। जी, ठीक है, अब हमारे पास ये एक आखिरी ऑप्शन बचा था, देखा जाए अगर सिविल गवर्नमेंट के हवाले से, कि बाकी दोनों को आप 30 साल से देखते आ रहे हैं हम लोग, तो कोई बेहतरी नहीं आई। बिल्कुल ठीक। उम्मीद थी कि ये जो बुलंद बांग दावे किए गए थे इलेक्शंस में कि भाई आएंगे और ये सूरत हाल बेहतर होगी, 200 अरब डॉलर आ जाएगा, इतना हो 100 उसके जाएगा, मुंह पे मार देगा। फिर एक मुसीबत मैं कहूँगा हमारे लोगों के लिए क्या हुई मज़ीद, कि आप उन 3 सालों में उन्हीं पॉलिसीज़ को लेके चलते रहे, स्टेटस को ही रहा, बिल्कुल ऐसा। आपने कोई रिफॉर्म्स को लॉन्च नहीं किया, आपने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश नहीं की, चाहे वो हेल्थ का सिस्टम हो, एजुकेशन का सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, एनीथिंग, ठीक है ना, हर चीज़ पैरेलल चलती है। सर भाई, अब इन लोग के पास टीम नहीं है, इनके पास लोग ऐसे अहल नहीं है, और इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। ठीक है, आपने नैब के ऊपर जोर रखा, आपने एहतसाब पे जोर रखा, लेकिन ये चीज़ें चलनी चाहिए थी पैरेलल, कि आप रिफॉर्म्स भी लॉन्च करें और अवाम को सहूलतें तो दें। बिल्कुल ठीक है। जुडिशरी सिस्टम इतना हमारा अहम है और पुलिस का रिफॉर्म्स आना इतना अहम है, जिससे अवाम को बेतहाशा परेशानियां होती हैं। बिल्कुल सही। जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि इंसाफ मिलता ही नहीं है, फैसला हो जाता है लेकिन इंसाफ है ही नहीं। बिल्कुल। मुकदमात इतने पड़े हुए, लाखों मुकदमात पेंडिंग केसेस हैं भाई, उसका कोई एक सिस्टम बनाया जाए। लेकिन जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि ये सिस्टम ही बोगस है, जंग आलूद और बदबूदार सिस्टम है। बिल्कुल ठीक है, ये लोग नहीं
चाहेंगे जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं बिल्कुल ठीक है कि सिस्टम में कोई चेंज लाया जाए। बिल्कुल ठीक है। वजह ये है कि इसमें उनके अपने मुफादात के हैं, बेनिफिशियरी हैं, हाँ, सारे के सारे सब बेनिफिशियरी हैं। वो कह रहे हैं यार इसी सिस्टम में चलाओ, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हर एक को उससे फायदा उठाना है। अगर चेंज हो गया सिस्टम, सख्तियां आ गई, तो फिर इनके दुकानदारियां सबकी बंद हो जाएंगी। तो ये इतना एक अहम है, जिस वजह से देखिए अभी माशी जो निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, अब शौकत तरीन साहब को लाए हैं, वो भी एक बैंकर हैं। उससे पहले आप हफीज शेख साहब को लाए थे, वो IMF के आदमी हैं। बिल्कुल ठीक है। इनडायरेक्टली ये भी उन्हीं से लिंक्ड हैं अगर देखा जाए, जो बैंकर होता है जो कुछ भी है, ठीक है ना। तो मैं नहीं समझता कि कुछ ड्रास्टिक चेंज आएगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चेहरा ज़रूर चेंज हो रहा है। एक तो जब ड्रास्टिक चेंज आती है तो आदमी 15 दिन में पॉलिसी अनाउंस करता है कि अब ये होगा भाई, ऐसा ही है, अब यूँ होगा, ये होगा, ये होगा, यू नो। बिल्कुल ठीक है। सो वी हैवंट सीन दैट येट, ठीक है ना। उसमें प्रॉब्लम यही है कि जो आए हैं वो भी जी हम ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे, वो भी ठीक करते करते गए, बिल्कुल ठीक ठीक है, है। और अभी भी यही भी करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो मैं वही बात करूंगा कि गवर्नमेंट को अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। देखिए बात ये है कि समझ में आने वाली बात है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके बेहतर हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आपका स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो गया, आपका करंट डेफिसिट कम हो गया, पॉजिटिव में आ गया, यू नो, ट्रेड बैलेंस कुछ बेहतर हो गया हमारा, इंपोर्ट्स हमारी घट गई हैं 17-18 बिलियन डॉलर से, चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उससे अवाम को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? सही बात यह है कि उसका जो असरात हैं, जो हैं वो अवाम तक कब पहुंचेंगे? अवाम तो महंगाई के उस तरह दबी हुई है, उसके बारे में आपने ऐसा क्या कदम उठाया, ऐसी क्या आपने रिफॉर्म्स लाए हैं? नहीं, रिफॉर्म्स आए माजरत के साथ। मैं अक्सर ये सवाल अब करता हूँ, काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, तो हर चीज़ का जवाब ये दिया जाता है कि जनाब यासिर साहब आप ये देखिए कि रोशन डिजिटल अकाउंट हमने बना दिया है, कितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं, अब आप जवाब दीजिए। रोशन डिजिटल हर चीज़ का जवाब यही है। नहीं, जब मैं इंपोर्ट्स की कमी की बात करता हूँ तो कहते हैं बड़ी हमारी अचीवमेंट है। अब ये इनको कौन बिठाकर समझाए कि इंपोर्ट कम कर लेना, ठीक है आपने कर लिया, लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या है? वो जो चीज़ें दरामद हो रही थी, ये बताइए कि क्या वो मुल्क में आपकी इतनी पैदावारी सलाहियत है कि वो आप बना रहे हैं? ये तो खैर अकल रखने वालों के लिए है, इनके तो बड़ा मुश्किल से समझ में आएगा, लेकिन ये आजकल हर चीज़ का जवाब जो है वो यही दिया जा रहा है जी रोशन डिजिटल अकाउंट आप देख लीजिए, बड़े पैसे हमारे पास बाहर से आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम सही काम कर रहे हैं, बाहर वाले हमें पैसे भेज रहे हैं। खुदारा ये बताइए कि कौन सी ऐसी दीवार है, कौन सा दरख्त है जिससे आदमी जाके सर मारे और फिर इस पर देखिए पैसे, मेरे पास पैसे पड़े हुए अकाउंट में, मैं उसको अपने घरों पे खर्च ही नहीं कर रहा, उस पैसे का फायदा है कुछ? ये बड़े आपने सादा लफ्जों में समझा दिया, यही मैं आपसे चाहता था और उम्मीद भी ये करता था। अब आप ये देखें कि यार उस पैसे को चाटना बैठ के, मुझे तो भाई अवाम के लिए आपने क्या फैसिलिटेशन की है, हमें ये देखना है कि अवाम को आपने क्या सहूलियात दी हैं महंगाई से बचाने के लिए, मसाइल से बचाने के लिए। बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। अब आप 3 सालों में अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, देखिए कोई भी मुल्क की जो असास होती है ना वो SMEs होते हैं जी। आप जब 3 साल में आए तो आपको चाहिए था कि अपनी आप, मैं शुरू से बात करता हूँ कि एक शॉर्ट टर्म रेंज, मीडियम, फिर लॉन्ग टर्म रेंज के गोल सेट करते हो, गोल सेट किए और वो आप उसको एक्सप्लिसिटली आप डिफाइन करते हो, लोगों को बताते हो कि भाई हमारे शॉर्ट टर्म के ये गोल्स हैं, मिड टर्म के ये गोल्स हैं और लॉन्ग रेंज के ये गोल्स हैं, और उसको हमने अचीव करना है। अचीव करने के लिए भी ज़ाहिर बात है परफॉर्मेंस दिखाएंगे ना। बिल्कुल ठीक है। तो मैं हमेशा से रहा हूँ कि आपने इस 3 साल में ऐसी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी नहीं दी जिससे कि नई इंडस्ट्री लगे, SMEs को जो है ना वो आप आगे लेके चलें, क्योंकि SMEs किसी भी मुल्क की साथ SMEs होते हैं, जब आप अच्छी इकोनॉमी के लिए आपको उनको प्रमोट करना पड़ता है, आपको उनको पनपाना पड़ता है आपको, ठीक है ना। लेकिन उन 3 सालों में अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई अनफॉर्चुनेटली, जिससे कोई जाहिर होता कि यार एक पॉलिसी सेट हो गई है शॉर्ट रेंज, लॉन्ग, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज की, उसमें इंशाल्लाह हम ऐसा तरक्की करेंगे, ठीक है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, मैं अभी इस पे तफसीलन आपसे गुफ्तगू करूंगा कि फिर शायद डॉक्टर मातीर से जो मीटिंग हुई थी उसमें शायद मौसम का हाल ही पूछा गया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर मातीर साहब से अगर किसी को मौका मिले जानने का तो सबसे पहला अगर आप भी सवाल करेंगे तो यही आपका सवाल होगा कि ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपने जो ये जो रेवोल्यूशन लेकर आए थे SMEs को, कैसे आपने ग्रो किया था? आपका भी मेरे ख्याल में और मेरा भी सबसे पहला जो उनसे सवाल होगा वो यही होगा। गलबन इसके ऊपर गुफ्तगू अभी करनी है और भी मामला हैं, इसके ऊपर बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ हमारी गुफ्तगू हो रही थी मईशत के हवाले से, और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके फ़ैसलों के हवाले से बात कर रहे थे। बहरहाल बात करना ज़रूरी है और बात ऐसी की जाए कि देखने वालों को समझ भी आए
जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिस तरह की बातें कही जाती हैं, जिस तरह के अदाद व शुमार पेश किए जाते हैं, यकीनन समझना बड़ा मुश्किल है। और एक बड़ा बुनियादी सा एक सवाल है कि अगर ये जो फ़ैसले आप कर रहे हैं और जिस पे आप रोज़ाना की बुनियाद पर दावे करते हैं, सीना ठोक कर ये मईशत के अंदर बेहतरी आ रही है, तो ये माह मुबारक के अंदर जो कुछ होता रहा, देखिए बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। बार बार सवाल करता रहूँगा अपने प्रोग्राम के ज़रिए, चाहे कोई पूछे या ना पूछे। ये माह मुबारक में जो कुछ हुआ, जो दूध की कीमत थी, जो सब्ज़ियों फलों की कीमतें थीं और दीगर अजनास की जो क़ीमतें थी, लोग इससे महरूम रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन इसकी जवाबदेही करेगा? और ये जो बड़े बड़े अशारिये दिखाए जाते हैं, फिगर्स आपको दिखाए जाते हैं, इससे क्या हासिल हो रहा है? तो खुदा हकीकत पर मबनी बात कीजिए, ऐसी बात करें जो लोगों को समझ में आए। इनका ज़ाला कौन करेगा? ये बात ऐसे ही हर दफ़ा ख़त्म नहीं होगी कि माह मुबारक गुजर गया, जो कुछ होना था हो गया, अब आगे देखेंगे और फलाना होगा, ऐसा नहीं होगा। ये सवाल आपसे 12 महीने होता रहेगा, बल्कि जब तक यहाँ पर हैं आपसे ये सवाल ज़रूर करते रहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले भी ऐसा ही मौजू एक जिसके ऊपर बात हो रही थी, मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, तज्ज़ियाकार हैं, बिज़नेसमैन हैं, इन नामसाइब हालात के अंदर भी कारोबार कर रहे हैं। ये भी बड़ा एक काम है। मैं ज़रा ये भी उनसे पूछूंगा कि ये कैसे मुमकिन हो पाता है। अच्छा जी, पर कोई कुछ आप बात कर रहे थे मातीर, डॉक्टर मातीर मोहम्मद की पॉलिसीज़ के हवाले से बात हो रहे थे। फार्मूला तो बड़ा आसान सा है। एक तो हमारे कौमी मिजाज भी है कि वो कॉपी पेस्ट जिसको कर लेना, कि वो इधर से नकल करके छाप लेते हैं, वो चाहे इम्तिहानी मराकज़ हो या कहीं पे भी हो, ये कॉपी पेस्ट ही चला आ रहा है। और भी बहुत सारे मामलात में नागावार गुजर जाएगा, लेकिन इसलिए मैं उसका तज़किरा नहीं करता। तो ये क्या मुश्किल था कि आप कॉपी पेस्ट कर लेते, कोई रेप्लिका उसका तैयार कर लेते? आपके पास तो बड़े बड़े जीनियस मौजूद हैं जो पॉलिसी मेकिंग में नाकाम हुए हैं। तो क्या मुश्किल था कि आप वो पॉलिसी, अगर मातीर साहब से आपकी मीटिंगें हो रही हैं, टेलीफोन के ऊपर राब्ते हो रहे हैं, तो क्या मौसम का हाल पूछा जा रहा है? कभी ये पूछना का बारा किया कि डॉक्टर साहब आपने ये जो रेवोल्यूशन लेकर आए थे, ये किस तरह मुमकिन हुआ? क्या नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। असल में बात ये है कि खान साहब ने पहले कहा कि जो मलेशियन सिस्टम उसको फॉलो करना चाहिए, फिर कहा जो चाइनीज़ सिस्टम उसको फॉलो करना चाहिए, ईरानियन सिस्टम है उसको अच्छा, फॉलो कर लें। हाँ, लेकिन चीज़ ये देखिए, आप हमारे पास चाइना एक बहुत बड़ी मिसाल है जी। चाइना जिस तरह तरक्की की है और जिस तरह हमारे ताल्लुकात हैं, और इसी तरह महातिर साहब के साथ जो मलेशिया से हमारे ताल्लुकात हैं, इनका मिलना रहा, हर चीज़ रही, और ये एज ए मॉडल उसको कोड करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि आपने उनसे इन चीज़ों, जैसे अगर कोरिया हमसे लेट 60s में 5 इयर्स का प्लान लेके आज तरक्की कर सकता है, तो क्या हम उनसे इस किस्म की चीज़ें लेके तरक्की नहीं कर सकते? वो वाली बात है कि भाई आपने कट करके पेस्ट ही करना है, पेस्ट ही करना है, ठीक है, तो आप कॉपी करें, पेस्ट करें, उसको थोड़ा सा आप कस्टमाइज़ करके अपने मुल्क के हिसाब से पॉलिसी को आप उसको नाफिज कर दें। ये आइंदा भाई ये सिस्टम है। मैंने वही अर्ज़ किया कि 3 साल में कोई ऐसी रिफॉर्म्स, कोई ऐसा सिस्टम, कोई पॉलिसी लाए ही नहीं कि जिससे पता चले कि यार गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या है इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, हमें मॉडल तो मिल गया जी, चाइना मॉडल है, मलेशिया मॉडल है, लेकिन क्या हमने उनको फॉलो किया? उन चीज़ों को नहीं किया फॉलो। तो हमें क्या इतना शर्म महसूस हो रही है हमको उनसे पूछते हुए कि यार आपने किस तरह किया था, हमें बता दो भाई। बिल्कुल ठीक है। क्या उनके लोगों को लाने में कोई कबाहत है? आप ले आए, कोई इशू नहीं है, एज ए कंसल्टेंट लेके आ जाएं, ठीक है, मलेशिया से लेके आ जाएं, चाइना से लेके आ जाएं, बैठाएं, एक थिंक टैंक बनाएं, उनको बोलो यार हमारे मुल्क का ये मिजाज है, लोगों का ये हमारा सिस्टम है, हमें पॉलिसी ऐसी दे दो, आप रिसर्च करें महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद हमें पॉलिसी बना दो कि हम किस तरह अपनी इकोनॉमी को आपकी तरह आगे लेके जाएं, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हो, क्योंकि वजह ये है कि इनके चौधरी बहुत इनके पास। अगर कोई बाहर के आदमी ने इस तरह कर दिया तो फिर मैं और आप सवालिया पूछेंगे सवाल इनसे कि भाई आपकी क्या अहलियत थी, व्हाट डिड यू डू? ये इतने बड़े बड़े जो पहले बलंग बांग दावे हुए थे कि वहाँ पर 200 लोगों का एक पूरी टीम है जो थिंक टैंक बना रखा है हमने, और हम आते ही इकोनॉमी को वहाँ से ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे। असद उमर साहब, देखिए असद उमर साहब कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, ठीक है, असद उमर साहब कोई उनका कोई ऐसा तजर्बा नहीं कि जिन्होंने ऐसे कोई अदारे चलाए हों। ठीक है, मैं तो समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पहले KPK की वजारत आला लेनी चाहिए थी। ये 5 साल पहले वहाँ काम करते 2013 में, ये समझते कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम करती है, सिस्टम है क्या मुल्क का, ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता। बिल्कुल सही। इन्होंने जिंदगी की नौकरी तो कभी की नहीं, कभी भी। ये इनकी पहली नौकरी थी ना, अगर देखा जाए। खुशहाल थे खानदान से, क्रिकेटर थे, अपने इंडिपेंडेंट थे, हर चीज अपनी थी ना, पैसे की कमी नहीं थी। तो भाई पहले नौकरी करते, वज़ीर आला बनते पंजाब, KPK। नवाज पहले वज़ीर आला बने थे, वो छोड़े उनकी बुराइयां क्या हैं, व्हाटएवर,
वज़ीर आला बनने के बाद उनकी पहले वज़ीर बने, फिर वज़ीर आला बने, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आज अगर मरियम नवाज़ को या बिलावल को आप बना देंगे, इससे बड़ा सानिया इस मुल्क के लिए क्या होगा? बिल्कुल ठीक है कि जिनको आइडिया नहीं है कि मुल्क है क्या, मुल्क को चलाना कैसे, करना कैसे, आप उनको ला के बैठा दीजिए कि आप मुल्क चलाइए, चलिए भाई। बिल्कुल ठीक है। तो कोई सिस्टम नहीं ना हमारे पास, तो इनको भी चाहिए था कि भाई पहले आप नौकरी करते वज़ारत आला की, फिर आप आगे आते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें तो बड़ी तादाद यहाँ पर ऐसी है जिन्होंने कभी काउंसलर का इंतखाब लड़ा नहीं, और लड़ा भी तो उनको मेरे ख्याल में 100 भी वोट पूरे नहीं मिले, और आज वफाकी वज़ीर बने में, कोई पोर्ट्स एंड शिपिंग का वज़ीर बना हुआ है, कोई फलाना वज़ीर बना हुआ है। तो फिर नतीजा तो यही निकलना था, अगर मैं उसको नतीजा खस करने की कोशिश करूँ तो यही जो हालात हैं, हमें कमोबेश यही हालात मिलने थे। देखिए टर्की में आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस पे आता हूँ। जी। टर्की में उर्दुवान साहब कैसे बन गए सदर के ना? बड़ी अच्छी बात आपने पहले मेयर थे इस्तांबुल के, हाँ, ही प्रूव दैट ही कैन डिलीवर, ठीक है। उसके बाद वो बने, आगे मेंबर बने और सारा सिस्टम किया उन्होंने, ठीक है। और आज वो फिर प्राइम मिनिस्टर भी रहे, फिर सदर बने, आज पावर लेके बैठे। तो एक ट्रेनिंग सेशन से होते हुए गुजरते हुए आए, वो कैसे प्रोसेस था? बिल्कुल हमारे यहाँ यही वजह है कि बल्दियाती निज़ाम को ये मजबूत नहीं करते। अगर बल्दियाती निज़ाम मजबूत होगा ना यासिर भाई, तो हमारे पास लोग जो ऊपर आएंगे ना, वो लोग ऊपर आएंगे फिर। बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। तो ये सिस्टम हमारा क्या है कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसीलिए मैं इसके खिलाफ हुए, पनपने नहीं दिया। वजह ये है कि आप जब तक नीचे पावर्स नहीं देंगे, लोगों को ट्रेनिंग नहीं होगी। मैं और आप काउंसलर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, डिलीवर करेंगे, लोग जानेंगे, फिर मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा। तो मैं वो लीडरशिप आपकी डेवलप हो रही है एक्चुअली। बल्दियाती निज़ाम एक्चुअली आपको लीडर देता है, ठीक है, आपको लोग देता है कि जो काम करने वाले लोग होते हैं, लोगों को पता होता है कौन डिलीवर कर रहा है। ये आप ऊपर से ला के बैठा दें कि पार्टी की वजह से वोट मिल गया, लोग जानते नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने किसी आवाम के लिए कोई फलाही काम ही नहीं किया हुआ, तो वो क्या आके काम डिलीवर करके बताइए। और वो नतीजा हमारे सामने सारा चला। अभी जो 249 का इलेक्शन हुआ, जिस बुरे तरीके से शिकस्त हुई है, ये शिकस्त फाश, ये चीज़ साबित कर रही है कि आप बुरी तरह नाकाम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की बातें करते हैं, बहुत सारी जगहों पर बुरी तरह शिकस्त मिली है, तो जवाब ये दिया जाता है कि जनाब पहले तो हमारी वहाँ पोजीशन नहीं है, अब तो हमारी पोजीशन बन गई है, वहाँ पे हमें 4-6 वोट उधर से मिल गए। तो ये इसके दलाइल जो है वो पेश किए जा रहे हैं। ऐसे क्या आर्गुमेंट किया जा सकता है? कुछ भी देखिए, बात हुई है कि आप हर बंदे नाहिल आदमी के पास जस्टिफिकेशन ज़रूर होती है कि यार सिर्फ उसके पास यही है, हर एक जस्टिफिकेशन होती है। आप किसी से बात करें, हाँ कि जी मैं इस वजह से, मैं असल में लेट हो गया था, असल में यूं हो गया था, वरना मैं ये कर लेता, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ। ये जस्टिफिकेशंस दे के आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप अहल हैं, ठीक है ना। उसका मतलब क्या हुआ, अगर फैसल वापडा की वो सीट थी, इसका मतलब ये हुआ कि वो वहाँ पर जाते ही नहीं थे, लोगों को उसकी जानकारी ही नहीं थी, लोग उनको जानते ही नहीं थे, आपने कोई काम ही नहीं किया था। उस वक्त एक जोर चला था पीटीआई का, ठीक है, एमक्यूएम के बाद खला आया हुआ था, तो लोगों ने आपको वोट दिया और आप बन गए। उस वक्त 1000-1200 वोट से आप बने थे, शहबाज शरीफ के मुकाबले में आप बने थे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद आपने काम उस इलाके के लिए क्या काम किया? वो कोई नहीं काम कर सकता, एमएनए ना नालियां बनवा सकता, ना उसको फुर्सत ही नहीं है। ठीक है, ये काम बल्दियाती निज़ाम, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब तक आप पावर्स नीचे नहीं देंगे इस मुल्क में, जब तक बल्दियाती, आप जितने एडवांस कंट्रीज हैं ना, या से भी आप देख लें, उनका जो बल्दियाती निज़ाम है ना, वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, बहुत फाल है, बहुत फाल है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर दूसरे इलेक्शन हो ना हो, लेकिन उसके इलेक्शन ज़रूर होते हैं, ऐसा ही है, और लोगों को उसके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, और वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब मेयर डायरेक्ट आता है, ये नहीं है कि वो उसको 240 काउंसिलों ने मेयर मुंतखब कर लिया, नो, उसके डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डिप्टी मेयर का डायरेक्ट, फिर वो अकाउंटेबल होता है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाती है कि भाई आप क्या कह रहे हैं, शहर के लिए आपने क्या किया है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पार्टी बेस पे सारा सिस्टम होता है, ठीक है, पार्टी बेस होनी चाहिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन भाई फिर अवाम के लिए क्या काम हो रहा है? तो ये इस सिस्टम में अगर आप समझते हैं कि यार ये कोई काम कर लेंगे अवाम के लिए, कभी भी नहीं होगा यार भाई, कभी भी नहीं होगा। अवाम पिसती रहेगी, अवाम को कोई सहूलत नहीं मिलेगी, आपके कोई मसले हल नहीं होंगे, आप कितने प्रोग्राम कर लें, आप कितनी बातें कर लें, अनटिल अनलेस यू चेंज द सिस्टम, ये काम कभी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा, जब कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं वही सवाल आपसे दोबारा करूंगा। देखिए, हम क्योंकि इसी सिस्टम का हिस्सा है ना, वही मसाइब ज़्यादा लोग जो टीवी के सामने बैठकर प्रोग्राम देख रहे हैं, हम भी उन्हीं का हिस्सा हैं, हमने भी वो तकालीफ और परेशानियां उठाई। ये पूरे माह मुबारक के अंदर जिस तरह फल और सब्जियों की कीमतों के लिए जिस तरह दुश्वारी लोगों को हुई है, लोगों की दस्तरस से दूर हुई जो तमाम चीज़ें, अब सवाल किससे करें? जो लोग हमें मिलते हैं वो कहते हैं यासिर भाई आप ज़रूर सवाल करें अपने मेहमानों से, लोगों को भी बुलाएं, उनसे पूछें कि इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। जो आप बड़े बड़े दावे करते हैं जी इकॉनमी ठीक है फलाना, अगर केला 180 रुपये 190 रुपये अगर
माह मुबारक में फ़रोख्त होगा, तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, किससे ये सवाल किया जाए? आप बैठकर हमें अदाद शुमार बता रहे होते हैं, इंडिकेटर्स बता रहे होते हैं, मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर और फलाना फलाना, इन सब से क्या हासिल है, मकसद क्या है इन सारी चीज़ों का, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? अब मैं जब भी ये सवाल रखता हूँ, कहा ये जाता है जी सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं, 18वीं आइनी तरमीम रुकावट है, वरना तो हम पता नहीं क्या कर देते। तो जब ये आइनी तरमीम नहीं हुई थी, उससे पहले क्या यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही थी जब वफाक में हुकूमतें मौजूद थी? यही सारे उज़र और बहाने थे जो पेश किए जाते थे। तो इसमें नया क्या है, ये तो मुझे ज़रा देखिए, नया यासिर भाई कुछ नहीं है। ये हकीकत है कि 18वीं तरमीम के बाद अब अगर कराची की जुरिसडिक्शन तो फेडरल गवर्नमेंट की तो नहीं है ना, अगर यहाँ महंगाई हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ठीक है, सूबाई गवर्नमेंट, सूबाई, ठीक है। अब देखिए, पहले वक्तों में आज से 40 साल पहले या समझ लें कि असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स या कमिश्नर्स ये शहरों में चक्कर लगाते रहते थे कीमतों की यानी कि तयन करने के लिए और मेक श्योर करने के लिए कि महंगाई नहीं हो रही है, और जा के छापे लगते थे, सब चीज़ होती। आज के एसी जो हैं, डीसी हैं, वो एसी कमरे से निकलते नहीं हैं, उनका कोई काम ही नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल पोस्ट होती हैं, अब उनको सूबाई गवर्नमेंट को कुछ भी करना होता है तो ब्यूरोक्रेसी का ऐसा ही लोग, ठीक है। और उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये अब हर सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जब आपने 4 मुल्क बना दिए, विद इन 1 मुल्क आपने 4 मुल्क बना दिए, 18वीं तरमीम ऐसी है कि वो इट्स सॉर्ट ऑफ डिफरेंट 4 कंट्रीज एक्चुअली, सो दे हैव मेड सच अरेंजमेंट्स कि वो चौधराहट हर सूबे की अपनी है, ठीक है। अच्छा फारूक भाई, मैं आपको सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत के साथ, ये जो बड़े ममालिक जिनकी मिसालें दी जाती हैं ना, वहाँ पर ये निज़ाम राइज है लेकिन बेहतरीन नताइज उसके मिल रहा है। मिसाल के तौर पे आप एक मुल्क है ना अमेरिका, जिसकी सुबह शाम मिसालें देते हैं, हर स्टेट के अंदर अपने इंतज़ामात अपने हिसाब से चलाते हैं ना, बिजली की पैदावार हो, टैक्सेस की कलेक्शन हो। वहाँ कैसे ये चीज़ इतनी आइडियली चल रही है, सब कुछ चल रही है, कैसे वो इस चीज़ को यकीनी बना रहे हैं कि दुनिया की एक सबसे बड़ी माशी ताकत और एक वो बन गए, मजबूत इकानमी बन गए, आपके यहाँ वो चीज़ काम नहीं करके दे रही है? तो इसकी क्या वजह है, ये तो बताएं कि कमो बेश वही मामला है, सूबाई खुद मुख्तारी है बिजली की पैदावार के हवाले से और दीगर मामलात के ऊपर, लेकिन कंसिस्टेंट फेलियर। आप नीचे आ जाएं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, सिंध गवर्नमेंट, सीरीज ऑफ फेलियर है। किसी शोबे में उठा के आप देख लें, आपको एक फेलियर की हिस्ट्री आपको मिलेगी। अब से नहीं, जितनी दफ़ा उन्होंने रूल किया, हर चीज़ में आपको फेलियर नजर आएगा। क्यों नहीं आपके? देखिए, उसकी वजह है सबसे बड़ी चीज़, एक तो एजुकेशन, सेकेंडली अदालती निज़ाम। ठीक, वो इतना स्ट्रॉन्ग है उनका जुडिशरी सिस्टम कि जब कोई करप्शन करता है और जब पकड़ा जाता है तो चाहे वो गवर्नर हो स्टेट का या कोई भी हो, ठीक है, और वो फिर बचता नहीं है, प्रेसिडेंट क्यों ना, कोई भी हो। अब देखिए, आप जिस अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर वज़ीर आला नहीं होता कोई जी, जो आप सूबाइयत की बात कर रहे हैं ना, वो सिस्टम डिफरेंट है, वही सिस्टम की मैं बात करता हूँ। गवर्नर जो बनता है ना, वो डायरेक्ट इलेक्शन से आता है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, और जितने इख्तियारात हैं वो सब मेयर के पास होते हैं। आप देखें न्यूयॉर्क का मेयर, दूसरे मेयर, जब बात देखें कितने स्ट्रांग होते हैं, बिल्कुल ठीक है, कि वो जवाब देते हैं गवर्नर, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट। उनको पता है कि भाई शहर के जो मामला हमारे हाथ में, पुलिस उनके अंडर होती है, ठीक है, और गवर्नर डायरेक्ट इलेक्ट होके आता है, उसको सूबाई मेंबरान मिलके वज़ीर आला नहीं बनाते उसको। तो वहाँ सूबाई असम्बलियाँ नहीं है, आप समझे, सूबाई वजारत नहीं है वहाँ पर, वजारत नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा सिस्टम को। वो कामयाब सिस्टम इसलिए है कि वो इंडिपेंडेंट मुल्क नहीं है। वो आपने इंडिपेंडेंट स्टेट तो की हुई है, एक इख्तियार दिए हुए उसको, लेकिन एक सर्टन फेडरल रूल के तहत दिया हुआ उसको, ठीक है, और उसको गवर्नर और मेयर चलाते हैं शहरों के, ठीक है, ठीक है, उसको सूबाई असम्बली नहीं चलाती, सूबाई वजीर नहीं चलाते। मैं उसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जो लोगों के पास उसकी पावर्स आए। बल्दियाती निज़ाम, आप जाके अमेरिका में जाके देखिए उनके बल्दियाती निज़ाम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि मेरे कज़न थे, वो यूज्ड टू लिव इन जर्मनी, तो वो कहीं अपने एक फ्रेंड के साथ जा रहे थे शहर से बाहर वीकेंड पे, तो वो नई जगह जा रहे थे कहीं, चलो यार वहाँ चलते हैं। तो रास्ते में देखा उन्होंने कि यार एक रोड करना, एक पैच टूटा हुआ था, कोई आप समझें 25-30 फीट का वो गड्ढा सा बना हुआ था। तो उस दोस्त ने थोड़ा आगे जाके गाड़ी लगाई पेट्रोल पंप पे, वहाँ उसने कॉल, ये आज से बता रहा हूँ कि 20-25 साल पहले की बात होगी, 25 साल, उसने फ़ोन किया बल्दिया वालों को कि यार ये क्या है वहाँ पर भाई। उसने उनको डांटा लिटरली कि ये टूटा हुआ रोड है, यहाँ पर तुम देखते नहीं हो क्या, ठीक है। कहता हम वापस आए, कहता आप सोच सकते हो हम 3 दिन के बाद वापस आए हैं, वो रोड बना हुआ था। बिल्कुल ठीक, ये राइट्स है आवाम के सर। आज आप रोते रहते हैं हम अपने नालियों के लिए, अपने रोडों के लिए, हमारी सुनता है कोई? कोई भी नहीं,
कोई नहीं सुनता। वजह ये है कि उनको तो देखिए इसमें अवाम की भी एक मसला है, अवाम हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको बताया ही नहीं गया कि तुम्हारे हकूक क्या हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि आईने पाकिस्तान हमारा, मेरे जो तालीमी निज़ाम की मैं बात करता हूँ उसमें रिफॉर्म्स हमने भी कुछ बनाई हैं, कुछ प्रपोज की थी उसमें था कि मैट्रिक से लेके इंटर तक जो है ना वो आप आईने पाकिस्तान पढ़ाएं, मुझे और आपको पता तो हो कि मेरे हकूक क्या है, मेरे आईनी हकूक क्या है इस मुल्क के, जो आइन जो भी मौजूदा आइन है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले एक तालीम का, दूसरा सिस्टम, वो जो आप बात कर रहे हैं अमेरिकन स्टेट्स की, सर वहाँ पर सूबाई असम्बलियाँ नहीं है, सूबाई वजीर नहीं है, ये लल्ले तल्ले सारे बंद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, तो जाके सिस्टम ठीक होगा। इस सिस्टम के तहत कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है फारूक भाई, अब सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन गुफ्तगू ऐसी है, यकीनन सुनने वाले भी बड़ी दिलचस्पी से गुफ्तगू सुन रहे होंगे, क्योंकि अवामी मसाइल के हवाले से हम बात करते हैं। हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि हम वफाकी बातें करें कि वहाँ पर किसका नाम ECL में डाला है, नहीं डाला। हद ये है कि आज तारीख़ तक मामला अगर कोई ज़ेर बहस आ रहा है तो वो यही आ रहा है कि फ़लाना साहब का नाम ECL में डाला जाए या ना डाला जाए। दूसरी तरफ आवाम की हालत आपके सामने। बहरहाल इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है फारूक साहब। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था, गुफ्तगू ही थी कुछ हालात के हवाले से, जो मौशी सूरत हाल है इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। जो कुछ पूछ सकते हैं ये सारा गुबार है, देखने वाले जो सवालात भेजते हैं वो चाहते हैं कि इसके ऊपर में कोई तो बात करे, तो ये बात करते रहेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो कुछ हुआ है इसके ऊपर सवाल तो ज़रूर करेंगे। और ये अब हर दफ़ा की तरह नहीं होगा कि मामला आकर गुजर गया और इसका ये भी जवाब काबिल कबूल नहीं होगा कि पिछली हुकूमतों में क्या होता रहा। एक तो जिस बात की भी इनसे सवाल की जाए, जवाब तलबी की जाए, तो उसका जवाब आगे से आता है कि जो पिछले दौर में कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही थी। जनाब बिल्कुल नहीं बह रही थी, आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन इस तरह मामला जो हल नहीं होंगे और ये हमारे लिए जवाब जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना होगा, लेकिन एक छोटी सी पहले ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।